کے کلام میں سے ہم حزقیل نبی کا صحیفہ اور اس کا باب نمبر 22 اور آیت نمبر 30 کو ہم تلاوت کریں گے۔ حزقیل کی کتاب باب نمبر 22 اور آیت نمبر 30 کو ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کے رخنہ میں میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ میں اسے ویران نہ کروں، پر کوئی نہ ملا۔ پس میں نے اپنا قہر ان پر نازل کیا اور اپنے غضب کی آگ سے ان کو فنا کر دیا، اور میں نے ان کی روش کو ان کے سروں پر لایا، اور خداوند خدا فرماتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا ہم سبوں کو برکت دے، آمین۔ آئیے تشریف رکھیں۔ خداوند کی تعریف ہو، خداوند کی مدح سرائی ہو۔ اس نے ساری پرستش میں اور اس ساری عبادت میں ہمیں برکت دی، اور اس نے ہمیں کثرت کے ساتھ استعمال کیا، اس کے لیے خداوند کی تعریف کرتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ تاکہ آج کا کلام ہماری زندگیوں کے لیے ہو۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمیں اپنے رخنوں میں کھڑا ہونا ہے۔ کیا ٹاپک ہے ہمارا؟ ہمیں اپنے رخنہ میں کھڑا ہونا ہے، ہمیں اپنے رخنہ میں کھڑا ہونا ہے۔ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو رخنہ ہے آج ہمارا مضمون ہے، اس کا مطلب ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، اور میرے عزیزو اس کا جو فارسی کا لفظ ہے رخنہ جو ہے، اس کا مطلب ہے سوراخ یا چھید ہو جانا یا دراڑ پڑ جانی۔ رخنہ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے دراڑ پڑ جانا، سوراخ ہو جانا یا چھید ہو جانا۔ جس طرح ہم اکثر دیواروں میں دیکھتے ہیں کہ دراڑ پڑ جاتی ہے، کسی ایک دیوار پر ہم دیکھتے ہیں کہ چھید ہو جاتا ہے، سوراخ ہو جاتا ہے، تو رخنہ۔ تو یہاں پر جب حزقیل کی کتاب میں خدا باپ نے جب دیکھا کہ حزقیل کے سرداروں کا گناہ، پیچھے ہیڈنگ اگر پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے حزقیل کے جو اسرائیل کے جو سردار تھے نا، ان کا گناہ کے سبب سے خدا کا قہر اس وقت ان کو اس بنی اسرائیل قوم پر جو ہے وہ پڑا۔ تو وہ کیسے؟ تو بائبل مقدس فرماتی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا۔ اگر آپ آیت نمبر کو پڑھیں، 26 کو پڑھیں اس کے 22ویں باب میں، تو لکھا ہے، اس کے کاہنوں نے میری شریعت کو توڑا۔ سب سے پہلا، ٹھیک ہے جی، کاہنوں نے شریعت کو توڑا، میری مقدس چیزوں کو ناپاک کیا، نمبر 2، اور انہوں نے مقدس اور عام میں کچھ فرق نہیں رکھا، نمبر 3، اور نجس و طاہر میں امتیاز کی تعلیم نہیں دی، اور میرے سبتوں کو نگاہ میں نہیں رکھا، اور میں ان میں بے عزت ہوا ہوں۔ یہ 4-5 چیزیں جو تھیں اسرائیل کے سردار کرتے تھے، ان کی وجہ سے کیا ہوا؟ ان کی زندگیوں کے اندر رکھنا پڑ گیا، یعنی سوراخ آ گئے، خدا اور ان کے درمیان کیا ہوگی؟ دراڑ پڑ گئی۔ سمجھ آ گئی اب رکھنا کیا چیز ہے؟ خدا اور بنی اسرائیل کے درمیان کیا ہو گیا جی؟ دراڑ پڑ گئی، چھید آ گیا۔ یعنی اس طرح جب آپ کسی کے سامنے کھڑے ہیں تو بیچ میں کوئی دیوار آ جائے، رکاوٹ آ جائے، تو اسی کو کہتے ہیں۔ تو خداوند خدا کیا کہتا ہے کہ ان کے اور میرے درمیان، یعنی پھر خداوند نے جب دیکھا کہ یہ اس طرح میرے سبتوں کی پابندی نہیں کر رہے، یہ میری بے عزتی کر رہے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ بڑے سردار جن کو علم ہے، جن کو یہ پتہ ہے، وہ بھی اپنی راہوں سے پھر گئے ہیں، اور مسلسل وہ عام، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ عام اور مقدس چیز میں بھی فرق نہیں چھوڑا، بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میری مقدس چیزوں کو بھی ناپاک کیا جو ہیکل کے اندر تھیں۔ وہ سردار یہ کر رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ خدا، بلکہ وہ اس طرح سے اس کو بے عزت کر رہے تھے کہ جیسے کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے، پھر میں نے دیکھا کہ کوئی ایسا شخص ملے جو ان رخنوں میں کھڑا ہو جائے تاکہ میرا قہر ان پر نہ پڑے، لیکن خداوند کہتا ہے میں نے دیکھا تو کوئی شخص نہیں ملا۔ جب رکھنا پڑتا ہے نا، جب رکھنے پڑ جاتے ہیں تو اس کے لیے یاد رکھیں کوئی ایسی کوئی جل، کوئی ایسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی کہ جس سے ہم ان دراڑوں کو جوڑ لیں۔ ہاں ہو سکتا ہے جب دیوار پر کوئی دراڑ آتی ہے اس کو ہم سیمنٹ کے ساتھ اس کو ریفل تو کر سکتے ہیں، اگر کسی برتن میں کوئی دراڑ آتی ہے اسے بھی ہم مختلف طرح کی جو ہے وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، بنی ہوئی ہیں جن کے ساتھ ہم ان کو جوڑ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب زندگیوں میں جب خدا اور انسان کے درمیان جب رکھنا پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے نہ کسی گوند نہ لیوی کی ضرورت ہے، اس کے لیے ضرورت ہے زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کی۔
हालेलुया। क्योंकि जब आदम ने गुनाह किया तो आदम के गुनाह करने के वसीला से बनी नौ इंसान और खुदा के दरमियान क्या हो गया जी? जुदाई आ गई, दरार आ गई, दीवार आ गई। उस दीवार को गिराने के लिए मेरे और आपके खुदावंद यीशु ने और खुदा के बेटे ने कुर्बानी दी और फिर हमारा मेल खुदा के साथ करा दिया। अब यहां पर खुदावंद खुदा कहता है कि मुझे कोई ऐसा शख्स मिले, मैंने उनके दरमियान तलाश की। अच्छा देखिए, फिर भी खुदा उनके दरमियान तलाश कर रहा है कि कोई ऐसा शख्स मिले, कोई ऐसा पर्सन मिले, कोई ऐसा शख्स मिले कि जो रखने में खड़ा हो जाए, यानी जो दीवार पड़ चुकी है, यानी कि ये जो काम कर रहे हैं इनके खिलाफ कोई उठ जाए। अगर सरदार नापाकी और आम और मुकद्दस चीज में फर्क नहीं समझ रहे, शब्दों की बेरुमती कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैकल के अंदर, शब्द को पाक नहीं मान रहे, और अगर ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, तो कहता मैंने ऐसा कोई शख्स देखा, इनमें से कोई मुझे मिल जाए कि वो खड़ा होकर कहे कि ऐ लोगों तुम गलत कर रहे हो, खुदा के कलाम के खिलाफ जा रहे हो, खुदा के खिलाफ जा रहे हो। तो कहता मुझे कोई शख्स नहीं मिला कि जो उन रखनों में खड़ा हो जाए। यानी सारे के सारे क्या कर रहे थे? एक ही जगह, एक ही चीज पर लगे हुए थे कि बेइज्जती करनी है और खुदा के कलाम को नहीं मानना है। मैं जब इस कलाम को पढ़ रहा था तो मुझे एक बात खुदा ने मेरे दिल में ढाली कि आज अगर हम अपनी जिंदगियों में देखें तो बहुत सारे रखने पड़ चुके हैं। हमारा रिश्ता खुदा के साथ जो है बड़ा कमजोर हो चुका है, उसमें बड़ी दरारें आ चुकी हैं, उसमें बड़ी छेद हो चुके हैं, उसमें बड़े सुराख हो चुके हैं। आज जरूरत यह है कि हम उन रखनों में खड़े हो जाएं। जब आप उन रखनों में खड़े हो जाएंगे, वो रखने बंद हो जाएंगे, वो सुराख बंद हो जाएंगे, वो छेद बंद हो जाएंगे, और आपका ताल्लुक और मेरा ताल्लुक अपने खुदा के साथ फिर से पहले की तरह बहाल हो जाएगा। फिर से पहले की तरह हम ताजगी पाएंगे, फिर से पहले की तरह हम जोरावर हो जाएंगे। जरूरत इस बात की है उन रखनों में क्या करें? खड़े हो जाएं। कभी कभी हम आते हैं खुदा के खादमों के पास, परसा मेरे लिए दुआ करे मैं बहाल हो जाऊं, परसा मेरे लिए दुआ करे मैं बहाल हो जाऊं। तो पादरी साहब तो दुआ करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? वो शख्स खुद उस रखने में क्या हो जाए? खड़ा हो जाए। देखो अपने घरों में जाकर अपनी जिंदगी के अंदर शख्सी तौर पर अपने घराने पर नजर करो कि कहां पर दरारें हैं, कहां पर जो है वो रखने पड़ चुके हैं। आज जरूरत है उन रखनों में खड़े होने की। जब आप अपने घरों के अंदर अपनी जिंदगी में देखेंगे, अगर आप ही खड़े नहीं होंगे तो कैसे वो रखने जो है वो बंद होंगे। खुदा कहता है मैंने नजर की, एक घर के अंदर अगर 8 लोग हैं, अगर 8 के 8 ही नशे में मुब्तला हो जाए, खुदा से बागी हो जाए, कैसे रखना भरेगा? कोई नहीं भरेगा। जब अगर 7 लोग ऐसे हैं, जैसे खुदा ने देखा कि बनी इस्राएल के सरदार इसी उनके गुनाह की वजह से खुदा का कहर आया, तो खुदा ने नजर की कि मैं देखूं कि कोई शख्स मिले ताकि इन फसीलों में खड़ा हो जाए, ताकि मेरा कहर इन पर ना भड़के। इसी तरह अगर 8 घर के 8 लोग हैं, अगर 7 खुदा के खिलाफ हैं, उसके कलाम पर अमल नहीं कर रहे, शब्दों को चर्च में नहीं जा रहे, संडे को चर्च नहीं जाते, दुआ नहीं करते, और खुदा की चीजों के यानी खुदा के बारे में उनका कोई ऐसा मतलब कि वो प्यार नहीं करते, खुदा के साथ ताल्लुक नहीं है, वो दूर जा रहे हैं खुदा से। अगर ऐसे 7 लोग हैं, 8वें को चाहिए कि वो रखने में खड़ा हो जाए और बुलंद आवाज से दुआ करे और रोज उस रखनों में खड़ा होकर दुआ करे, तो खुदा उसकी दुआ के वसीला से, खुदा उसके खड़े होने के वसीला से उन 7 जानों को भी बचा लेगा। सब बोले हालेलुया। आज आप देखें कि ये घरों के अंदर, ये जिंदगियों के अंदर बड़ी जो है वो कमी है इस बात की। हमें रखनों में खड़े होने की जरूरत है। हम रखनों में खड़े नहीं होते और उससे पहले ही हमारी जिंदगी में मायूसी और पहले ही मनफी चीजें हम सोचना शुरू कर देते हैं कि ये नहीं होगा। अब यहां पर देखें कि गुनाह बहुत बढ़ चुका है, हालांकि हैकल की पाक चीजों को भी नापाक कर दिया है, शब्दों की भी पाबंदी नहीं हो रही है। फिर उसके बाद अगर देखें तो मुकद्दस और आम चीज में फर्क नहीं है, नजस व तार में इम्तियाज भी नहीं है कि क्या गलत है क्या अच्छा है, इसमें भी कोई इम्तियाज नहीं कर रहा। जो जिसका जी चाहता है वो कर रहा है, अपनी मर्जी से, अपने जहन से, अपने दिल से सब कुछ कर रहे हैं। कोई अच्छे बुरे में तमीज नहीं है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा, बल्कि शब्दों की जो है वो पाबंदी भी नहीं कर रहे। और इससे खुदावन का कलाम कहता है कि उन्होंने मुझे बेइज्जत किया है। लेकिन फिर भी खुदा
अपने लोगों पर मेहरबान है। उसने फिर भी देखा कि मैं देखूं कोई ऐसा शख्स मिल जाए कि जो इन रखनों में खड़ा हो जाए, जो खड़ा होकर कहे कि ये तुम जो करते हो ये गलत है, तो मैं इन पर अपना कहर नहीं डालूंगा। लेकिन कोई शख्स नहीं मिला, कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला। आज भी अगर हमारे घरानों में कोई शख्स यीशु मसीह को कबूल करने से के बगैर ही मर जाता है, नजात पाने के बगैर ही मर जाता है, तो इसमें मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है, क्योंकि हम उन रखनों को हमने रिफिल नहीं किया, हम उन रखनों में खड़े नहीं हुए। अगर हम वक्त पर उन रखनों में खड़े हो जाते, वो जिंदगियां बच जाती। यहां पर अगर कोई शख्स मिल जाता तो इनका गुनाह माफ हो जाता, जो रखने पर खड़ा हो जाता तो माफ हो जाता। खुदा ने देखा, इसलिए तो खुदा ने जब सदूम और अमूरा पर आग भेजी तो वहां पर खुदा का बंदा बाप अब्राहम खड़ा हो गया, और वो क्या कहता है, ऐ खुदावंद यहाँ पर 50 लोग हैं। कहता है अगर 50 हैं तो मैं इस इलाके को छोड़ दूंगा, माफ कर दूंगा। हालांकि वो क्या था, वो इलाका गुनाह से भरा था, वहां पर बदकारी अरूज पर थी। लेकिन क्या हुआ, खुदा ने कहा अगर तू कहता है तो मैं इसे भी छोड़ दूंगा। जब हमारे घरों में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे रिश्तेदारों के अंदर कोई ऐसा शख्स है जो नशे की हालत में है, कोई ऐसा शख्स है जो खुदा से दूर है, कोई ऐसा पर्सन है जिसने तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, जिसने यीशु की सलीब पर नहीं नजर कर रहा, जो उसके लहू को नहीं जान रहा, उसके लहू की कदर नहीं कर रहा, उसके कफारे को नहीं मान रहा, उसके जान देने को नहीं मान रहा, तो आओ आज रखनों में खड़े हो जाओ। मेरा ईमान है जब आप रखनों में खड़े होंगे वो जिंदगियां बदलेंगी, और जिंदगियों के अंदर नापाकी खत्म हो जाएगी, वो पत्थर दिल भी टूट जाएंगे और वो यीशु को कबूल करेंगे। आपके रखनों में खड़े होने से बंधन टूटेंगे, जुए टूटेंगे और एक बड़ा इनकलाब आएगा। सब बोले हालेलुया। खुदा देख रहा है, खुदा नजर कर रहा है कि इस घर से कोई तो उठे, कोई तो रखनों में खड़े हो, कोई तो स्टैंड ले कि मैं खड़ा होकर अपने खुदा की हुजूरी में बुलंद आवाज करूं। रखनों में खड़े होना बड़ा जरूरी है। जब तक आप खड़े नहीं होंगे तब तक मैं समझता हूं कि आपके पूरे घराने के अंदर बेदारी और रिवाइवल नहीं आएगा। इसलिए यह बड़ा जरूरी है कि हम उन रखनों में खड़े हो जाएं, क्योंकि वो दराड़े जो सराख पड़ चुके हैं उन पर जब हम खुदा की हुजूरी में खड़े हो जाएंगे तो यकीनन वो भरना शुरू हो जाएंगे, यकीनन वो दरारें खत्म होना शुरू हो जाएंगी। आप ये ना देखें कि वो शख्स, वो जिंदगी कैसी है, बल्कि आप ईमान से खड़े हो जाएं। जब आप ईमान से खड़े हो जाएंगे, खुदावंद के कलाम में ये लिखा है जैसा तेरा एतकाद है तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा। जरूरत है हम उन रखनों में खड़े हो जाएं। हालेलुया। क्या करें, उन रखनों में क्या हो जाएं, खड़े हो जाएं और अपनी आवाजों को खुदा की हुजूरी में बुलंद करें। रखनों में खड़े होने से मुराद यही है कि जब हम अपने घरों के अंदर अपनी शख्सी जिंदगी में दुआ करें, दुआ करने वाले बन जाएंगे, खुदा की हुजूरी में घुटने टेके और गिड़गिड़ाएंगे, मेरे घराने पर, मेरे बच्चे पर रहम कर, खुदावंद इनकी रवशों को मोड़ दे, और खुदावंद अगर ये गलत ट्रैक पर जा रहे हैं तो इनके ट्रैक दुरुस्त हो जाए। तो मेरा ईमान है कि खुदा उन रस्तों को, ना हमवार रस्तों को हमवार बनाना शुरू कर देगा। हालेलुया। सो खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। जोरदार तालियां बजा के खुदा को